Hello everyone, welcome back to MB Classes Labor Law and HRM. Today we are moving into part 2 of our attitude series of UGC NET Code 55. In last video we discussed attitude, components of attitude, functions of attitude, types of attitude and major job attitude. Today we will discuss about the theory. Why do we hold certain attitude? We answered the bigger question. How do they predict our behavior? And what happened when our attitude clashes with our action. We will be covering 5 major theoretical framework. First, function theory by Daniel Kahn. Second, theory of plant behavior by S.C. Kaizen. Cognitive dissonance theory by Leon Festinger. Self-perception theory by Dalbaum. And balance theory by Fritz Heathers. It is the all theory. So we will cover first function theory by Daniel Kahn. And it is the based on 4 function theory. And you can say functions of attitude. Knowledge, utilitarian, value expressive and ego defensive. Second, theory of plant behavior. We will discuss about our behavior based on attitude toward the behavior, subject norms and perceived behavior control. And it leads to intention and intention leads to behavior. So it's all planned. Cognitive dissonance theory discuss about the conflict between belief and behavior. And self-perception theory about first we observe behavior, then we infer attitude. Means behavior determine attitude. Balance theory, it means me and my colleague same focus on the object. So this all are 5 theory we will discuss in detail. Or this, please screenshot this theory because whenever asked in NET exam, so you have to memorize for this chart paper. फर्स्ट है काज फंक्शनल थ्योरी ऑफ एटीट्यूड. फर्स्ट एडजस्टमेंट, इसके 4 फंक्शन है. आप एटीट्यूड के अगर आपको फंक्शन पूछे जाए तो आप एटीट्यूड के भी 4 फंक्शन होते हैं. ये किसने दिए थे? सबसे पहले आपको पता होनी, काज ने दिए थे. फर्स्ट है एडजस्टमेंट फंक्शन, यू कैन से यूटिलिटियन फंक्शन. ये क्या होता है? एडजस्ट मतलब आप इसमें क्या होता है? मैक्सिमम रिवॉर्ड्स एंड मिनिमाइज पनिशमेंट. मतलब आप क्या करते हो, जो आपको प्रमोशन के लिए जो हैबिट्स है, जो आपको गोल अचीव करने के लिए उनकी तरफ आप एटीट्यूड को इंक्रीज करते हो और जो आपके बिहेवियर को, जो गोल को ब्लॉक करती है, उन बिहेवियर को मिनिमाइज करते हो. सेकेंड है ईगो डिफेंसिव, मतलब अपनी सेल्फ स्टीम को प्रोटेक्ट करने के लिए आप इस एटीट्यूड को फॉलो करते हैं. तो कहते हैं ना, एटीट्यूड का एक पर्पज है. ऐसा नहीं है कि आप इसका एक पर्पज है. विदाउट पर्पज यू कांट सर्व एटीट्यूड. तो ये कहीं ना कहीं फंक्शन थ्योरी किस पर आर्ग्यू करती है कि एटीट्यूड हमारा रैंडम नहीं है, ये एक पर्पज है, हम इन्हें होल्ड करके रखते हैं किसी चीज के लिए, इसलिए इन्हें फंक्शन थ्योरी कहा गया है. वैल्यू एक्सप्रेसिव मतलब अपनी कोर वैल्यू, अपना बिलीफ सिस्टम, वो एम आई. नॉलेज, अंडरस्टैंड द वर्ड. ठीक है, तो ये चीजें हमारे 4 फंक्शन है एटीट्यूड की. फर्स्ट थ्योरी है हमारी फंक्शनल एटीट्यूड थ्योरी. ये किसने दी थी? डेनियल काज ने. तो हम अब इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो पहला गया एडजस्टमेंट, you can say utilitarian instrumental function. It means you adjust according to your reaching goal, मतलब according to your natures. तो ये बेस्ड किस पे? प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमाइज रिवॉर्ड, जो आपको हेल्प करे रिवॉर्ड पाने में, उसकी तरफ आपका अच्छा एटीट्यूड है. और मिनिमाइज पनिशमेंट, और जो आपको हेल्प नहीं करे, जो आपको ब्लॉक करे बिहेवियर, उसकी जगह आपका नेगेटिव एटीट्यूड है. तो ये कैसे करता है? पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड थिंग्स दैट हेल्प अस रीच आवर गोल एंड नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स थिंग्स दैट ब्लॉक अस. Then OB example क्या है? Employee develop a positive attitude toward the specific software because learning help them get a promotion. It means it leads to reward. They develop a negative attitude toward the HR department because they once rejected their leave application. It means punishment. So it's called the adjustment function. It means it pay to have this attitude. जो आपका attitude बना रहा है, इससे आपको कुछ मिल रहा है. तो ये आपका की है. तो ये हमारा adjustment हो गया. मतलब adjustment according to your goal achieving. सेकेंड है ईगो डिफेंसिव. ईगो डिफेंसिव क्या है? अपनी सेल्फ स्टीम को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने फेलियर को जस्टिफाई करने के लिए ये क्या एक्ट करती है? एज ए शील्ड अगेंस्ट अ हार्श थॉट. मतलब उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने फेलियर्स को अपने आप को हाइड करने के लिए, अपने ब्लेमिंग को छुपाने के लिए ये एटीट्यूड हम यूज करते हैं. कैसे काम करती है? हम इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग अ फ्लो इन आवरसेल्फ वी फॉर्म अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड द समथिंग एज टू फील बेटर. अपने आप को फील करने के लिए. सपोज आप डेली लेट आ रहे हो, ठीक है, लेकिन आप ब्लेम क्या करो? डेली ट्रैफिक लगता है. तो ये क्या है? आपने अपने आप को नहीं किया, अपने ईगो को सेव करने के लिए, अपने ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने क्या किया? अपने आप को जस्टिफाई किया, अपनी फेलियर्स को.
एग्जाम्पल है एम्प्लॉय विद कॉन्स्टेंटली लेट माइट ब्लेम द टेरिबल ट्रैफिक और अनफेयर अटेंडेंस पॉलिसी rather than admitting they are undisciplined, their attitude defend their ego from the feeling guilty. मतलब ये आपको फीलिंग गिल्ट होने से बचाता है, आप अपने आप को जस्टिफाई करते हो जिससे आपको गिल्ट फील नहीं होता है. Then it's not my fault, it's the system, it's based on ego, it's not my fault. Okay, तो ईगो डिफेंस है मतलब अपने ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए. थर्ड है हमारा वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन. These attitude allow us to express our core value and self-concept. Who am I? It represents who am I. Then how it is work? We get satisfaction from expressing who we are and what we believe in. हम क्या करते हैं, हमें अच्छा लगता है कि कौन मैं हूं. अगर मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है तो इट्स आर वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन. मेरा एटीट्यूड कैसा है, वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन. बिकॉज आई नो, मैं इसी नाम से जानती हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं पढ़ाती अच्छा हूँ. ठीक है, तो ये ही है, मुझे पढ़ाना है, ये होता है हमारा वैल्यू एक्सप्रेसिव. फॉर एग्जाम्पल, एक अगर वो भी एग्जाम्पल ले, ए मैनेजर ड्राइवर इलेक्ट्रिक कार स्ट्रिक्टली इनफोर्स अ पेपरलेस ऑफिस रूल. ठीक है, तो उसका पॉजिटिव एटीट्यूड किसकी तरफ है, सस्टेनेबिलिटी एक्सप्रेस, मतलब उसको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना है. तो इस टेल द वर्ड दिस इज वो है आई एम, मतलब उसने पेपरलेस ऑफिस रूल रखा है तो वो सबको बताएगा कि यस मैं सस्टेनेबिलिटी पे काम करता हूं. तो इस फ्रेज दिस रिप्रेजेंट मी, ये है हमारा वैल्यू एक्सप्रेस, मतलब आप अपनी कोर वैल्यू सिस्टम को एक्सप्रेस कर रहे हो. फोर्थ है हमारा नॉलेज फंक्शन. नॉलेज फंक्शन ह्यूमन नीड ऑर्डर है. कहीं ना कहीं जब आपको भी हो तो आपको एक ऑर्डर, एक स्ट्रक्चर की जरूरत होती है. वी कैन नॉट एनालाइज एवरी सिंगल न्यू थिंग्स वी सी, वी यूज एटीट्यूड एज ए शॉर्टकट टू अंडरस्टैंड द वर्ड. ऐसा नहीं है हर कोई चीज देख ली और आप उसे एनालाइज करो, इतना पॉसिबल तो है नहीं. तो हम क्या करते हैं, हम एज एटीट्यूड की तरह उससे शॉर्टकट की तरफ, जो आपके पास नॉलेज है उसके बेसिस पे उस वर्ड को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं. एटीट्यूड प्रोवाइड स्टैंडर्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू ऑर्गेनाइज क्योस. जो भी ऑर्गेनाइज क्योस हो रखा है उन सबको एक ऑर्डरली सिस्टमेटिकली अरेंज करने में हेल्प करता है. तो मैंने आपको बताया था एटीट्यूड को क्या बोला जाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोला जाता है. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एटीट्यूड को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जाता है, मतलब एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि इस तरीके से आपको ऑर्गेनाइज करना है. देन इसमें बोला गया कि अगर एक न्यू एम्प्लॉय ने बोला कि द फाइनेंस टीम इज स्ट्रिक्ट, तो एम्प्लॉय अडॉप्ट हिज एटीट्यूड इमीडिएटली. And now every time they interact with finance, they don't have analyze the situation, they just use their strict filter to interpret behavior. It make words predict, मतलब इजी है ये वर्ड को प्रिडिक्ट करने में. किसी ने बोला फाइनेंस चीज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, अब उसको टाइम नहीं लगा, वो जस्ट इंटरेक्ट करेगा और उसको एनालाइज नहीं करेगा सिचुएशन को, क्योंकि उसको पहले से पता है कि ये स्ट्रिक्ट है. ठीक है, तो ये इस तरीके से वर्ड हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं. तो इसका की फ्रेज क्या हुआ, इट हेल्प मी अंडरस्टैंड द वर्ड क्विकली, मतलब हमें लोगों को समझने में हेल्प मिलती है नॉलेज फंक्शन के बेसिस. इस तरीके से एडजस्टमेंट, यूटिलिटी, रिवॉर्ड, पर्पज है. आई लाइक माई बॉस बिकॉज ही गिव मी बोनस. ठीक है, और आई यू हेट एचआर बिकॉज दे रिजेक्ट योर लीव. दिस कॉल द एडजस्टमेंट फंक्शन, अपनी रिवॉर्ड के बेसिस पे काम करते हैं. ईगो डिफेंसिव, प्रोटेक्शन फ्रॉम ट्रूथ, अपने ट्रूथ से. आई डिडंट गेट प्रमोशन बिकॉज द बॉस इज बायस. आप अनक्वालिफाइड हो ये नहीं बोला, आपने बोला कि नेट के एग्जाम मैंने इसलिए क्वालिफाई नहीं किया, क्यों, क्योंकि नेट का एग्जाम ही टफ आया था. आपने ये नहीं बोला कि मैंने प्रिपरेशन नहीं करी थी, आपने क्या बोला कि मेरा एग्जाम का जो नेट का एग्जाम है वो बहुत टफ था. तो दिस कॉल द ईगो डिफेंस. इसके में क्या होगा, आपको गिल्ट नहीं होगा. वैल्यू एक्सप्रेसिव क्या है, आइडेंटिटी एंड सेल्फ इमेज. आई सपोर्ट द CSR इनिशिएटिव बिकॉज आई बिलीव इन गिविंग बैक, मतलब आप सबको अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सपोर्ट करते हो, ये अपने आप को आप रिप्रेजेंट करते हो. नॉलेज, ऑर्डर एंड अंडरस्टैंड. ठीक है, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग. नॉलेज क्या होती है, ऑर्डर है. ठीक है, आप वर्ड को समझने में हेल्प करता है. आई डिसलाइक यूनियन बिकॉज दे ऑलवेज क्रिएट अ डिस्प्यूट. ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या होता है पहले से वर्ड को प्रिडिक्ट कर लेते हो. तो ये हमारे 4 फंक्शन है, इसे फंक्शन भी कह सकते हैं, फंक्शनल एटीट्यूड थ्योरी भी कह सकते हैं. आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर होगी. हम हर थ्योरी को 1 by 1 अच्छे से समझेंगे और ये आप एग्जाम में अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा. Then next theory, theory of planned behavior by Isaac and Eigen. This theory explains how attitude translates into actual behavior. It's not a just random, you just think and then behave. It's just a plan. It claimed that attitude alone isn't enough to predict what someone will do. You need 3 too. Attitude मतलब सिर्फ attitude नहीं है जो आप predict कर रहे हो हर चीज को. इसके लिए आपको 3 dimensions की जरूरत है. Attitude toward the behavior क्या होगा? First, I think exercise is good. सब्जेक्टिव नॉर्म क्या होगा, माई फ्रेंड थिंक आई शुड एक्सरसाइज बिकॉज आई एम फैटी. परसीव बिहेवियर कंट्रोल, आई बिलीव आई हैव अ टाइम एंड एबिलिटी टू एक्सरसाइज. देन आउटकम क्या आएगा, अब आप उस एक्सरसाइज को करोगे. तो
तो अब क्या पहला मतलब ये ऐसा नहीं कि आप सिर्फ में एटीट्यूड ही डिटरमाइन करता है आपके बिहेवियर को, आपका सब्जेक्टिव नॉर्म्स, परसीव बिहेवियर कंट्रोल, ये सारी सब्जेक्टिव नॉर्म क्या है कि मेरे फ्रेंड भी सोचते हैं कि मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है, एक आपका मन हो गया, एक आपका फ्रेंड का हो गया। परसीव बिहेवियर कंट्रोल क्योंकि आपके पास टाइम भी है और एबिलिटी भी है, तो इस तरीके से आउटकम मिलता है आपका जब आप एक्सरसाइज करते हो। तो मतलब ऐसा नहीं कि एटीट्यूड अलोन है, एटीट्यूड के साथ आपका सब्जेक्टिव एंड परसीव बिहेवियर कंट्रोल भी साथ चलता है। इस तरीके से एटीट्यूड टुवर्ड द बिहेवियर, सब्जेक्ट नॉर्म, देन इंटेंशन, इंटेंशन लीड टू बिहेवियर। मतलब आप एक्सरसाइज कर रहे हो या स्टडी, जैसे किसी ने बोला कि आपको पढ़ना, जैसे मैंने आपसे बोला आपको पढ़ना चाहिए और आपको भी लग रहा है कि मुझे पढ़ना चाहिए नेट के एग्जाम के लिए, ठीक है, देन अब आपको पता है कि मेरे अंदर, आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप जेआरएफ क्रैक करते हो, जब आप फिर क्या करोगे, आप मेहनत करना स्टार्ट कर दोगे। दिस ऑल टाइप ऑफ थ्योरी ऑफ प्लान बिहेवियर, हाउ एटीट्यूड लीड्स टू बिहेवियर। आई थिंक आपको ये प्लान बिहेवियर समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं बैलेंस थ्योरी। बैलेंस थ्योरी गिवन बाय फ्रिज हैदर। दिस थ्योरी फोकस ऑन कंसिस्टेंसी बिटवीन थ्री एलिमेंट, द पर्सन, another person, object, it's called the POX triad। बैलेंस स्टेट क्या होगी, सपोज फॉर एग्जांपल इस तरीके से, ठीक है, ये P है, ये अदर पर्सन है, ठीक है, और ये आपका कोई प्रोजेक्ट है X है, मान के चलो ये X है आपका। अब इसमें क्या होता है, बैलेंस स्टेट क्या होगी कि जो यू लाइक योर कोवर्कर, सपोज P और इन दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है एंड यू बोथ लाइक अ न्यू प्रोजेक्ट, अगर दोनों को जो काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट पे, दोनों को वो प्रोजेक्ट पसंद है, तो क्या होगा, हार्मोनी होगी, मतलब इट्स कॉल्ड द बैलेंस स्टेट। इन बैलेंस स्टेट क्या होगा, यू लाइक योर कोवर्कर, मतलब आप लोगों को बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बट दे हेट द प्रोजेक्ट, यू लव द प्रोजेक्ट, मतलब पी को ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगता है लेकिन ओ को ये प्रोजेक्ट अच्छा नहीं लगता। अब क्या आपके माइंड में एक प्रेशर क्रिएट होगा, चेंज योर एटीट्यूड टुवर्ड द कोवर्कर और द प्रोजेक्ट रिस्टोर बैलेंस। या तो कोवर्कर की तरफ अपना एटीट्यूड चेंज करोगे या उस प्रोजेक्ट की तरफ अपना एटीट्यूड, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं हमारा माइंड क्या चाहता है, एक कंसिस्टेंसी, एक मैचिंग चाहता है, ठीक है, तो ये कहलाती है बैलेंस। समझ लो इस तरीके से BOX ट्राइड, मतलब P O लाइक करते हैं एंड क्या होगा, बैलेंस स्टेट, P लाइक O, P लाइक X, O लाइक X, हार्मोनी हार्मोनी। अब P डिसलाइक्स X हो सकता है और X जो O है वो डिसलाइक X हो सकता है, तो ऑब्जेक्ट इशू होगा, इम्बैलेंस स्टेट होगी, P लाइक O है, P डिसाइड X, O लाइक X, O डिसाइड, मतलब कुछ टेंशन नीड्स टू चेंज बिहेवियर, मतलब हो सकता है। तो इसमें इम्बैलेंस में क्या हो सकता है कि उसे कोवर्कर पसंद नहीं है लेकिन प्रोजेक्टर दोनों को पसंद है, प्रोजेक्ट पसंद है लेकिन उसे आपस में बॉन्डिंग नहीं है, तो इससे क्या हुआ, इम्बैलेंस स्टेट होगी, ठीक है, तो इस तरीके से ये कहलाता है POX ट्राइड ऑफ रिलेशनशिप बैलेंस। थर्ड है हमारा कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी गिवन बाय लियोन फेस्टिंगर। Cognitive dissonance, any incompatibility between two or more attitude between behavior and attitude। जो हमारे अंदर का behavior और attitude में जो incompatibility होती है उससे बोलते हैं cognitive dissonance। मतलब हमारे mind में एक stress चल रहा है, ठीक है, cognitive मतलब mind, dissonance मतलब आपका stress है। Premises क्या है, human crave consistency, we want our attitude behavior to match, क्योंकि हमें क्या है, जो हमारा attitude है और जो हमारा behavior दोनों मैच होने चाहिए, ठीक है। Conflict क्या है, when they don't match we experience uncomfortable psychological tense called the cognitive dissonance। जब हमारा मैच नहीं होता, तो अब सपोज मैं अंदर से बहुत अच्छी इंट्रोवर्ट हूँ लेकिन मैं दिखा रही हूँ सबको मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हूँ, तो ठीक है, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल होगा। अगर मैं अंदर से एक्सट्रोवर्ट हूँ, यस आई एम वेरी ओपन माइंडेड एंड आई एम एक्सप्रेसली ओपन माइंडेड, तो इज कॉल्ड द मैचिंग, योर बिहेवियर इज शुड बी हार्मोनी, लेकिन जब ये मैच नहीं करते तो ये कॉग्निटिव डिसोनेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी में आपके एम्प्लॉय आया, वो अंदर से बहुत हार्ड वर्किंग नहीं है लेकिन प्रिटेंड कर रहा है, तो उसको ये मैच करने के लिए भी उसे बहुत स्ट्रेस क्रिएट करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल ले सकते हैं वर्क प्लेस सिनेरियो का। आपका एटीट्यूड है कि पॉल्यूटिंग द इन्वायरमेंट इज रॉन्ग, जो हमारे इन्वायरमेंट में जो पॉल्यूशन हो रहा है वो रॉन्ग है, लेकिन आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जहां पे ऑलरेडी सारा जो डंप है वो हमारा वेस्ट हो रहा है, वो रिवर में हो रहा है, सारा जितना केमिकल है सब उसमें रिवर में जा रहा है, तो अब आपके मन में गिल्ट आया, डिसोनेंस आया, मतलब स्ट्रेस आया कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहीं ना कहीं अपनी इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहा हूँ, तो ये कॉग्निटिव डिसोनेंस क्रिएट। देन इस तरीके से आपके जब बिहेवियर और बिलीफ में जो कन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं वो कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग इज बैड फॉर मी, ठीक है, आपका एटीट्यूड है कि स्मोकिंग इज बैड फॉर मी, बिहेवियर क्या है,
आप कंटिन्यू स्मोकिंग कर रहे हो लेकिन आपको पता है कि इट्स रॉन्ग, तो अब क्या होगा, अब कन्फ्लिक्ट क्रिएट क्या होगा, साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट, कहीं ना कहीं आपके मन में साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट फील होगा कि यस स्मोकिंग में कर तो रहा हूं लेकिन ये मेरे लिए अच्छी नहीं है। तो अब इन्हें रिड्यूस करने के लिए आप क्या सकते हो, या तो बिहेवियर चेंज कर सकते हो, या फिर चेंज एटीट्यूड कर सकते हो, या उस चीज को रेशनलाइज कर सकते हो। चेंज बिहेवियर मतलब आपने स्टॉप स्मोकिंग कर दी तो आपका गिल्ट स्ट्रेस फ्री हो जाओगे। एटीट्यूड, आपने ये मान लिया यार स्मोकिंग इज नॉट दैट बैड, ठीक है इतना भी बुरा नहीं है, तो हो गया रेशनलाइज कि मैं जब भी स्मोकिंग करता हूँ जब मुझे स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने आप को गिल्ट फ्री आप कर सकते हो, ये हमारे एटीट्यूड से कॉम्प्रोमाइज है। देन हाउ एम्प्लॉय, जो कि मैंने आपको बता दिया, फेस्टिंग आर्ग्यूज, हम इस पेन से हम इन 3 चीजों से बाहर निकल सकते। चेंज द बिहेवियर, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि उसमें पॉल्यूशन हो रहा है इन्वायरमेंट में, तो आपने क्या कर दिया कि आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जो केमिकल की कंपनी है, तो आपने क्या किया कि उसको जॉब को क्विट कर दिया। दूसरा चेंज द एटीट्यूड, आपने बोला आपने अपने मन को मतलब समझा लिया कि एक्चुअली द रिवर इज ऑलरेडी डर्टी, माई कंपनी इजंट मेकिंग इट मच वर्स, वो पहले से ही इतना गंदा हो रहा है रिवर, तो मेरी कंपनी इतना भी गंदा नहीं करेगी। तो आपने उसके क्या टूवर्ड्स रिवर के थ्रू आपने क्या किया उस एटीट्यूड को चेंज कर लिया। थर्ड रेशनलाइज, एड ए कंसोनेंट थॉट, आई नीड दिस जॉब टू पे फॉर माई चिल्ड्रन एजुकेशन, माई फैमिली इज मोर इंपोर्टेंट देन रिवर। तो आपने क्या बोल दिया कि मुझे इस जॉब पैसा दे रही है और इससे मेरी चिल्ड्रन की एजुकेशन हो रही है, इससे रिवर से ज्यादा मेरी फैमिली इंपोर्टेंट है। तो ये क्या कर रही है, हमारे डिसोनेंस को रिड्यूस कर रही है, हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस कर रही है, हमें गिल्ट फ्री रख रही है। अब आते हैं सेल्फ परसेप्शन थ्योरी गिवन बाय डेलीवान। दिस कंप्लीट द स्क्रिप्ट, अब इसने पूरा ही स्क्रिप्ट चेंज कर दिया। हम जब से क्या कर रहे थे, एटीट्यूड लीड्स टू बिहेवियर, यही था ना, एटीट्यूड लीड्स टू बिहेवियर। अब इसने बोला कि बिहेवियर लीड्स टू एटीट्यूड। देखो क्या था, एटीट्यूड डिटरमाइन बिहेवियर, एंड देन बेम का व्यू था बिहेवियर डिटरमाइन एटीट्यूड। एक्सप्लेनेशन, समटाइम वी डोंट नो हाउ वी फील अंटिल वी सी हाउ वी एक्ट, हमें पता नहीं होता कि हम कैसा फील कर रहे हैं जब तक हम उस चीज को देख नहीं लेते हैं एक्ट करते हुए, मतलब वो बिहेवियर करते हैं जब आपको समझ में आता है कि यस आपका एटीट्यूड ऐसा था। एग्जाम्पल है, मैं आर्गू कर इस मतलब जैसे आई आर्गू फॉर दिस प्रोजेक्ट इन 3 मीटिंग से आप इस प्रोजेक्ट पे आर्गू कर रहे हो। अब आपको लग रहा है कि जो मैं आर्गू कर रहा हूँ वो एकदम सही है, मतलब आपका बिहेवियर के बेसिस पे आपने एटीट्यूड को डिटरमाइन कर लिया। तो अगर सेल्फ परसेप्शन थ्योरी पूछे तो आपको पता चले बिहेवियर लीड्स टू एटीट्यूड, इस तरीके से। सेल्फ परसेप्शन थ्योरी, हाउ बिहेवियर इन्फॉर्म एटीट्यूड, बिहेवियर इन्फॉर्म कर रहा है कि आपका एटीट्यूड कैसा है। ऑब्जर्वेशन ऑफ माई बिहेवियर, आई स्पेंड एक्स्ट्रा आवर वर्क एवरी डे इन द मंथ, ठीक है। अब आपका आपने जब आपका बिहेवियर, आप डेली उस अपना एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, ठीक है, वर्किंग हो जहाँ, वाई आई एम डूइंग दिस, तो आपके माइंड में है मैं ये कर क्यों रहा, तो एटीट्यूड फॉर्म इज बिकॉज आई मस्ट रियली लाइक माई जॉब। तो अब क्या हुआ, बिहेवियर से ही डिटरमाइन हुआ। फॉर एग्जाम्पल, मैं डेली आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं अपना सेल्फ परसेप्शन थ्योरी का एग्जांपल देती हूँ, मैं डेली आपको पढ़ा रही हूँ, मैं रियलाइज हुआ मैं पढ़ा क्यों रही हूँ, फिर मुझे याद आया, फिर मुझे लगा कि मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, तो ये मेरा एटीट्यूड फॉर्मेशन है, ठीक है। तो एग्जांपल, रियलाइजिंग यू कंसिस्टेंटली वॉलंटियर फॉर न्यू टास्क, जब आप कंसिस्टेंटली कोई काम करते हो, जब आप कंक्लूड करते हो यस आप तो बहुत मोटिवेटेड इंप्लॉय हो, तो मतलब पहले आप एक्ट कर रहे हो, फिर उसको आप रियलाइज कर रहे हो, देन उसको आप फिर एटीट्यूड में कंक्लूड कर रहे हो। तो ये एटीट्यूड फॉर्मेशन क्या होगा कि जब आपका एटीट्यूड पता चला है अच्छा ये चीज है मेरे अंदर, जैसे बहुत सारे लोगों को अपनी स्ट्रेंथ नहीं पता होती, लेकिन कोई काम करता है, जब दूसरा कहता है यस यू हैव मच सो मच स्ट्रेंथ फॉर डूइंग दिस वर्क, देन यू रियलाइज यस आई हैव सो मच कैपेबिलिटी, दिस इज कॉल्ड द सेल्फ परसेप्शन थ्योरी। नाउ अब हम समराइज कर लेते हैं सारी थ्योरी का, आज हमने क्या क्या पढ़ा। थ्योरी, पहला कॉग्निटिव डिसोनेंस पढ़ी, जो कन्फ्लिक्ट बिटवीन बिलीफ एंड एक्शन, जो हमारा एक्शन है, हमारा बिहेवियर है और हमारा बिलीफ है, दोनों में कन्फ्लिक्ट है। सिंपल है, आई एम अनकंफर्टेबल सो आई विल चेंज माई माइंड। अब आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, अपने माइंड को चेंज कर सकते हो, जो मैंने बता दिया कि किस किस एटीट्यूड को चेंज कर सकते हो, बिहेवियर को चेंज कर सकते हो या रेशनलाइज कर सकते हो। सेल्फ परसेप्शन, बिहेवियर डिटरमाइन एटीट्यूड, आई डू दिस सो आई मस्ट लाइक, जो मैं काम कर रहा हूँ करता हूँ तो इसका मतलब मैं इस काम को पसंद करता हूँ। फंक्शन थ्योरी, एटीट्यूड सर्व अ पर्पज, एक पर्पज है हर एटीट्यूड का। दिस बिलीव हेल्प मी गेट बाई, जो मैं बिलीव करते कि यस जो जो चीजें हो रही हैं वो मेरे एटीट्यूड के बेसिस पे हो रही हैं। प्लान बिहेवियर, इंटेंशन लीड्स टू एक्शन, कहीं ना कहीं प्लान है, सब्जेक्टिव नॉर्म, परसेप्शन एंड एटीट्यूड, सिर्फ एटीट्यूड के बेसिस पे बिहेवियर नहीं होता, आपके साथ सब्जेक्टिव और परसेप्शन भी कंटेक्स्ट होता है। आई वॉन्ट टू, आई शुड, सो आई
कैन। ठीक है, बैलेंस थ्योरी, ट्राइंगल ऑफ रिलेशनशिप, जो कि मैंने POX बताया। आई वॉन्ट टू अग्री विद द पीपल एट द प्रोजेक्ट बिकॉज आई लाइक पीपल। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं आप तीन है, अब आपको कोवर्कर पसंद है लेकिन काम कोवर्कर को काम पसंद नहीं, आपको पसंद है, तो कहीं ना कहीं आपको उसके पॉइंट पे अग्री होना चाहिए, क्योंकि बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। तो ये थी आज हमारी थ्योरी। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे कि why do we hold certain attitude, how do they predict behavior and what happen when our attitude clash with the action। तो अब हमारा एटीट्यूड कंप्लीट हो गया। एटीट्यूड फर्स्ट पार्ट में हमने एटीट्यूड के फंक्शन, टाइप्स, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, कंपोनेंट्स पढ़े, और सेकंड पार्ट में हमने एटीट्यूड की थ्योरी पढ़ी। अगर आपको एटीट्यूड का कंसेप्ट समझना है तो आप प्रीवियस वीडियो को देखिएगा। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप लाइक।